Okay, students, today we will study some basic definition about introduction to statistical theory, in which first of all, what is the introduction? Uh, as you can see here, what is the meaning of statistics? Um, Many people give different views of statistics in many different ways. Some people say that this statistics is in fact the subject that deals with percentage, charts, graphs, averages, and tables. And maybe some other people say statistics is a subject of consisting of rules, methods, techniques of collecting and presenting large amount of numerical information. ठीक है, different pupils के different views हैं about statistics. यहाँ पे हमने जो डिफरेंट आइडियाज और डिफरेंट व्यूज थे उनको हमने देख लिया. स्टैटिस्टिक्स है क्या? द वर्ड स्टैटिस्टिक्स which means from which comes from Latin word status meaning a political state, originally meant information used to the state. For example, information about the size of a population. आपको याद होगा एंड यू नो अबाउट दिस कि जब कभी जैसे मर्दमशुमारी होती है तो उसमें पॉपुलेशन का साइज देखना हो तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स को भी हम यूज़ करते हैं. देयर आर मैनी मैनी एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आल्सो. For example, in banking, in accounting and other fields of science or arts, we are using this subject of statistics. Also, as you can see that here, use of statistics information. And the statistical information and can be used for variety of reasons. For example, statistics को हम कहाँ use कर सकते हैं? To inform general public, to explain things that have happened, and similarly to justify a claim, to provide general comparisons, and estimate the unknown quantities, relationship between the factors, and similarly there are many other examples where we can use statistical information. Here I am just telling to all of you the basic things so that you can come to know about this statistics. After that, you can see that here is two types. We will divide the statistics into two parts. One is descriptive statistics, okay, and other is inferential statistics. अब descriptive statistics में क्या होता है? Which deals with the concept and methods concerned with summarization and description of important aspects of numerical data. ये हम descriptive statistics में करते हैं. और inferential statistics में क्या होता है? That deals with inference about the characteristics that describe the large group of data or the whole. And this is known as population. इसकी example भी हम देख सकते हैं कि descriptive में क्या होता है, जिसमें इसकी किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं. For example, you can see here one example of descriptive statistics. For example, कोई player है, ठीक है, उसने कोई 20 games खेलने हैं और उन 20 games का अगर वो average निकालना चाहता है, such type of statistics are known as descriptive statistics. और inferential statistics की अगर हमें example देखनी है, for example, a cricket player wants to estimate his chance of scoring. कि अगर कोई प्लेयर है क्रिकेट का या किसी और गेम का और वो चाहता है, वो ये निकालना चाहता है कि उसका जो एस्टिमेट है चांस ऑफ स्कोरिंग बेस्ड ऑन हिज करंट सीजन एवरेज, जो करंट जो चीज़ है करंट सीजन में जो उसने प्ले किया है उससे उसको रिलेट करके अगर वो चांस निकालना चाहता है कि वो कितना स्कोर कर पाता है. सच टाइप ऑफ एग्जांपल इज रिलेटेड टू इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स हियर. वन इज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्या होता है कि एवरेज लेते हैं ओवरऑल, ठीक है, जिसमें समराइज करते हैं और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम चीज़ों को लिखते हैं. और इन्फ्रेंशियल में क्या करते हैं, इसमें हम करैक्टरिस्टिक्स या करंट उसकी जो किसी भी लार्ज ग्रुप है उसकी एस्टिमेट करते हुए हम चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये बेसिक डेफिनेशंस हैं. यू कैन ट्राई टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इनफैक्ट इन दिस फर्स्ट चैप्टर देयर आर लॉट्स ऑफ थ्योरी, लेकिन हम थ्योरी की तरफ इतना नहीं जाएंगे, ठीक है. लेकिन ये चूंकि इसका स्टार्ट था और बेसिक्स चीज़ें थी, सो मैंने सोचा कि आप सबसे ही कुछ शेयर कर दूं मैं साथ साथ.
आफ्टर दिस आई होप कि आप सब चैप्टर 2 देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो दैट इज आवर मेन चैप्टर जिसको हमने स्टडी करना है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी हाउ टू प्रेजेंट द डेटा. आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा. एक अनग्रुप्ड फॉर्म में डेटा होता है और एक ग्रुप्ड फॉर्म में डेटा होता है. ओके, सो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या है यहाँ पे, एज यू कैन सी हेयर ऑन द स्क्रीन. इंट्रोडक्शन में, द डिवाइस ऑफ गैदरिंग डेटा ऑफन रिजल्ट इन मैसिव वॉल्यूम ऑफ स्टैटिकल डेटा. कि इसमें जो डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, रॉ फॉर्म में हमारे पास होता है डेटा ऑलरेडी. उसको हम ग्रुप्ड फॉर्म में अगर कोई मेथड लगा के उसको हम किसी प्रोसेस से गुजार दें तो वही जो अनग्रुप डेटा होता है वो हमारे पास ग्रुप्ड फॉर्म में आ जाता है. ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को हम. कोई भी रॉ डाटा है अनग्रुप डेटा, जब हम इसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं उससे पहले वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है. जैसे हम किसी डेटा को भी ऑर्गेनाइज कर देते हैं, प्रोसेस में से ले आते हैं, इस टाइप का जो डेटा हमारे पास होता है दैट इज नोन एज ग्रुप डेटा. इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, एज यू कैन सी हियर, व्हाट इज क्लासिफिकेशन. The term classification is defined as the process of dividing a data of observation or object into classes or groups. कोई भी डेटा हमारे पास गिवन होगा, अभी हम एग्जांपल नेक्स्ट करते हैं सॉल्व. ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास रैंडमली वैल्यूज गिवन होंगी. हम क्या करेंगे, उसी डेटा को ग्रुप्स की फॉर्म में लिखेंगे या क्लासेस की फॉर्म में हम उसको डिवाइड करेंगे. सो दैट टाइप इज नोन एज क्लासिफिकेशन. किसी भी डेटा को जब ग्रुप्स की फॉर्म में लिख देंगे, उनकी क्लासेस हम बना देंगे, तो उस तरह की जो फॉर्म हमारे पास होगी डेट इज नोन एज क्लासिफिकेशन. इसी तरह से डेटा को हम टेबलाइज भी करेंगे, टेबुलेशन भी करेंगे. मींस कि उसके टेबल बनाएंगे. जो भी डेटा गिवन होगा उसका हम टेबल बना के उसको टेबल की फॉर्म में आप देखेंगे कि हम उसकी जो डेटा कोई भी गिवन होगा उसकी हम जो भी क्लास उसके जो क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लास बाउंड्रीज निकालेंगे, मिड पॉइंट्स निकालेंगे, टेली मार्क्स हम लगाते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी से हम देखते हैं कि हमारे पास डेटा की क्या वैल्यूज आती हैं. Next, some more basic definitions, for example, that we need uh, in our lecture. I hope so. I think on page number 20. Yes. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारी टर्म्स को हमने यूज़ करना है क्वेश्चनिंग में. इससे पहले आप सबको इनकी जो बेसिक और जो इसका इंट्रोडक्शन है और डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इन अ टेबल showing the distribution of the data into classes or groups together with the number of observations in each class or group is called a frequency distribution. कि क्या होगा, जो डेटा होगा उसको हम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, क्लासेस की फॉर्म में, और उन्हीं क्लासेस की जो हम क्लासेस और क्लासिफिकेशन करेंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हमारे पास आएंगे उसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड द नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लास लिमिट्स. क्या होती है? कोई भी जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जब ग्रुप्स की फॉर्म में हम डेटा को लिखेंगे तो उसकी दो हमारे पास लिमिट्स होंगी. द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर और द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब्स द क्लासेस. ठीक है, द स्मॉलर नंबर इज द लोअर क्लास. आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे उसकी जो स्मॉलर वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे लोअर क्लास लिमिट, और जो उसकी बड़ी वैल्यू होगी उसको हम कहेंगे द लार्ज नंबर को हम कहेंगे अपर क्लास लिमिट. जैसे ये क्वेश्चन करेंगे इसके साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा व्हाट इज क्लासिफिकेशन क्या है, यहाँ पे क्लास लिमिट्स क्या होंगी, क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी. ठीक है, इस तरह की तमाम चीजें जो हम उसके अंदर देखेंगे. सिमिलरली द नेक्स्ट डेफिनेशन इज क्लास बाउंड्रीज क्या होंगी हमारे पास. एज यू कैन सी हियर, क्लास बाउंड्रीज में क्या है? द क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर. ये क्या करती है क्लास बाउंड्रीज? ये सेपरेट करती है वन क्लास फ्रॉम अनदर. ठीक है, इसका जो मेथड होगा वो मैं आपको बताऊंगा. हाउ कैन वी फाइंड द क्लास बाउंड्रीज? इट्स डिपेंड ऑन डेटा. अगर 0 डेसिमल का डेटा है उसके लिए हम कैसे करेंगे, 1 डेसिमल डेटा है उसके लिए हम कैसे करेंगे, 2 डेसिमल डेटा तो उसके लिए हम इसको कैसे क्लास बाउंड्रीज को हम बनाएंगे.
यहाँ पे उसने एग्जांपल दी है, आई थिंक मे बी आई विल एक्सप्लेन इट मोर इन आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्लास मार्क। मार्क क्या होता है हमारे पास? क्लास मार्क इज आल्सो कॉल्ड द क्लास मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट होता है, कोई भी हमारे पास जो क्लास इंटरवल होगा उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को दोनों को प्लस करके जब हम उसको 2 पे डिवाइड कर दिया करेंगे तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है, एज यू कैन सी हियर द डेफिनेशन, इसमें भी यही लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड द क्लास मार्क। नेक्स्ट इज क्लास विड्थ और इंटरवल क्या होता है? द क्लास विड्थ और इंटरवल ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। जो भी हमारे पास क्लास बाउंड्री है ना, उसकी जो डिफरेंस हम लेंगे अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को, अगर हम उसका डिफरेंस ले लें तो हमारे पास आएगा क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, जो हमारे पास आ जाएंगे। सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशन दैट वी नीड इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल 2.2। अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज ऑल ऑफ यू अरेंज योर कॉपी, पेंसिल एंड पेन एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ दीज थिंग एज आई विल इंस्ट्रक्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप सबको बताता जाता हूँ, प्लीज इसको आप साथ साथ सॉल्व करते जाएं। यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्वेश्चन, और इसके बाद हमने ये अंडरस्टैंडिंग करनी है कि हमने इसमें करना क्या है, क्या हमने फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल 2.2 एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। First of all, what is the statement of this example? Make a grouped frequency distribution from the following data. अब आप देख सकते हैं there are many values are given, ठीक है, और these values are not in any ascending and descending order, किसी भी order में given नहीं है, randomly उसने values को लिया है। और इस तरह का जो data हमारे पास होता है that is ungrouped data। ठीक है, please note it, इस तरह से जो हमारे पास values spread हैं, किसी किसी प्रोसेस और किसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, सच टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज अनग्रुप डेटा। तो अभी हमने करना क्या है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ये जो गिवन डेटा है रिलेटिंग टू द वेट रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ग्राम ऑफ 60 एप्पल्स, कुछ 60 एप्पल्स उसने लिए हैं और उनका जो नियरेस्ट ग्राम जितना भी उनका वेट था पास पास का उसने पिक कर लिया आउट एट रैंडम फ्रॉम अ कंसाइनमेंट, कि उसने 60 एप्पल्स लिए हैं और उनके जो पास पास का वेट जैसे 106 है, 107 है, 111 है, 76, 82, इस तरह से जो एप्पल्स का वेट जो था 60 एप्पल्स का, उसको उसने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं। अब हमने इसका एक टेबल ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसकी बनानी है। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ड्यूरिंग द लेक्चर यू कैन रेज योर हैंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, सो यू प्लीज रेज योर हैंड। ओके, जी क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप अच्छे से देख लें। अच्छा, सबसे पहले अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू, अभी इस क्वेश्चन को आपने देख लिया होगा, आई होप सो। इसमें देखें कि फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा। आप सब देखें कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, प्लीज फाइंड आउट। जी, आप में से कौन बताएगा व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू? प्लीज रेज योर हैंड। When you will raise your hand, I will unmute you. जी नुमान अफजल बताएं बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू इस डेटा में कौन सी है? लार्जेस्ट 204 है और ठीक है, स्मॉलेस्ट 68। ठीक है, अगर आप इस डेटा को देखें, थैंक यू बेटा, इसमें हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 204 है, एज आई हैव ऑलरेडी अंडरलाइंड इट, 204। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास है वो 68 है। तो क्या करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे। सबसे पहले रेंज क्या होती है, रेंज ये होती है कि हमारे पास जो लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर दिस इज द रेंज। ये रेंज किसकी है, ये जो गिवन डेटा था उसकी हमने रेंज फाइंड आउट कर ली। ठीक है, नाउ इट्स अप टू अस। अब हम क्या करते हैं, सपोज वी डिसाइड टू टेक 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। हम क्लासेस बनाएंगे इसकी, और अब हमने खुद से डिसाइड कर लिया, यू कैन आल्सो टेक 8 क्लासेस, यू कैन आल्सो टेक 9 classes, you can also take 10
Sorry students, can you listen me? These students, can you listen me? All of you? Ji Mohammed Shabazz, can you listen me? Students, can you listen me? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। चलें ठीक है। सॉरी, सर आवाज आ रही है। आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है। सर आवाज आ रही है। थैंक यू बेटा। जी, अभी मैंने आपके साथ स्क्रीन भी शेयर किया फिर से। इसमें अभी हम देख रहे थे कि रेंज हमने फाइंड आउट की थी। व्हाट इज रेंज, मैंने आपको बताया कि इसमें लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सपोज वी डिसाइड टू टेक 7 क्लासेस ऑफ इक्वल साइज। तो मैंने अभी आपसे कहा कि आप 7 के बजाय 6 भी ले सकते हैं। ट्राई टू टेक मोर देन 5 क्लासेस, ठीक है। 5 से ऊपर ही आप लें, 6 ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, 9 ले लें, ठीक है। इस तरह से हम लेंगे। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं 7 क्लासेस, as you can see here. I hope dear students you can listen me now. जी नुमान अफजल बेटा बताएं, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जी एनी क्वेश्चन? नुमान अफजल, नुमान अफजल, can you listen me? जी, if nothing, no question, then we will continue our lecture. इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट से देखते हैं। ओके, क्वेश्चन एग्जांपल 2.2 as you can see on your screen, make a grouped frequency distribution from the following data. हमें डेटा गिवन है, this data is ungrouped data, ठीक है। जी नुमान अफजल बेटा बताएं। नुमान अफजल बेटा आपको अनम्यूट किया है, बोलें। नुमान अफजल, कैन यू लिसन मी? हेलो सर। जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आई है, तो इसलिए आई थिंक प्रेजेंट किया था कि आप। मे भी कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, आज कुछ ज्यादा इशू होना शुरू हो गया है। अब ठीक है जी? सर फिर आप। जी अब ठीक है आवाज बेटा? अब आवाज ठीक आ रही है आपको? जी दानियल मसूद बताएं बेटा, आप क्या कहते हैं? दानियल मकसूद। ठीक जी दानियल बेटा, चलो ठीक है, चलो मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। कुछ में भी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से डिस्कनेक्शन ज्यादा हो रही है, ठीक है। जी अभी हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था एग्जांपल 2.2। इसमें हमने क्या करना है, मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है, इसके हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इस डेटा में जो लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास थी वो 204 ग्राम्स है, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो 68 है हमारे पास। तो रेंज कैसे फाइंड करते हैं,
इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू उसको हम माइनस कर देंगे। यू कैन सी हेयर ऑन योर स्क्रीन 204 माइनस 68 करेंगे तो 136 ग्राम हमारे पास जो है ये जो वेट ऑफ एप्पल्स है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वी नीड टू डिसाइड टू टेक द क्लासेस। तो यहाँ पे हम कितनी क्लासेस ले रहे हैं, 7 क्लासेस एज यू कैन सी हेयर, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू ऑल ऑफ यू यू कैन आल्सो टेक 8 क्लासेस 9 क्लासेस, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, साइज और विड्थ ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमने रेंज फाइंड आउट की है ना 136, इसको डिवाइड करेंगे जो नंबर ऑफ क्लासेस यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड 7, तो 136 डिवाइड बाय 7 हम करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 19.47। ठीक है, इसको अगर हम अप्रोक्सीमेटली इसको हम करें तो ये 20 हमारे पास आता है। एज यहाँ पे जो क्लास विड्थ हम लेंगे वो 20 लेंगे, क्लास विड्थ हम क्या लेंगे, 20 लेंगे। तो जब हमने इस टेबल को अभी हम ड्रॉ करते हैं इससे पहले प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज आप देख सकते हैं एज यू कैन सी हेयर फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये जितनी भी वैल्यूज आप इन सबको नोट करें क्योंकि नेक्स्ट पेज पे हमने इसी का टेबल ड्रॉ करना है और मे बी यू विल नॉट एबल टू सी ऑल ऑफ दीज वैल्यूज। इन वैल्यूज को आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि आप इजीली इन वैल्यूज को देख सकें जब हम इसका टेबल ड्रॉ करें। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, इसके रेंज फाइंड की है, फर्स्ट थिंग जो 136 आई है। दूसरा भी हमने क्या किया था कि क्लास जो हमने साइज जो है वो हमने डिसाइड किया, नंबर ऑफ क्लासेस हमने कितनी लेनी थी वो 7 थी। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट किया, क्लास इंटरवल जो था वो हमने फाइंड करने के लिए इसी रेंज को 136 को 7 से डिवाइड करके 19.47 इसकी वैल्यू आई, डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 20 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम क्लास जो विड्थ हम लेंगे वो 20 लेंगे। ये टेबल अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एज यू कैन सी हेयर दिस इज द टेबल। मैं ट्राई करता हूँ कि आपको कुछ वैल्यूज ऊपर वाली भी नजर आ जाए साथ साथ, लेकिन उससे मे बी आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो। एनी हाउ यू विल सी यू कैन सी द टेबल। अब इस टेबल को हमने कैसे ड्रॉ करना है, सबसे पहले हमें गिवन किया था वेट, तो वेट का एक कॉलम हम बनाएंगे। अब वेट का कॉलम कैसे बनाएंगे, हमने अभी देखा कि जो डेटा में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू थी वो क्या थी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 68। तो हमने क्या करना है, जो अपनी वैल्यूज को स्टार्ट करना है वो 60 एटलीस्ट 68 से स्टार्ट करना है, और 68 से पहले भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, मींस के 66 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 65 से भी कर सकते हैं। सो अभी हमने जो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 60 एप्पल्स का जो वेट है उसके लिए जो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है उसका लिए हम टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम वेट का है। तो वेट में हम क्या लिखेंगे, इसकी तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन जो हमने क्लासेस बनाएंगे वो हम लिखेंगे, और क्लास इंटरवल कितना लेंगे वो भी हमने ऊपर निकाला है। एच किसके इक्वल अभी हमने ऊपर देखा है, एच इज इक्वल टू 20 का हम क्लास इंटरवल लेंगे। वो किस तरह से लेंगे, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं 65 से। अब ये 65 यहाँ पे क्या है, लोअर क्लास लिमिट, ये क्या है लोअर क्लास लिमिट। 65 से लेके अब आप 84 तक आप कैलकुलेट करें तो क्या इसकी विड्थ आपके पास 20 बनती है, काउंट करें। इसमें आपने 65 को भी इंक्लूड करना है और 84 को भी करना है। 65 टू 84, 65 को भी इंक्लूड करें और 84 को भी इंक्लूड करें, यू कैन काउंट इट इज इजीली। इसका जो हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 20 का आएगा। 65 से स्टार्ट करें और 84 तक लेके जाएंगे तो 20 हमारे पास आता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट क्लास इंटरवल। अब सेकंड क्या होगा, 84 तक तो हमने ले लिया, नेक्स्ट क्या होगा 85 से स्टार्ट करें और 20 का क्लास इंटरवल लेते हुए 104 तक हम इसको लेके जाएंगे। सिमिलरली थर्ड क्लास जो हमने क्लास इंटरवल जो क्लासिफिकेशन हमने की है 105 से लेके 124 एंड सो ऑन, चलते जाएंगे हम कहाँ तक, इस वैल्यूज को हम लेके जाएंगे। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी 204, एटलीस्ट हमने 204 तक जाना है, और अगर 204 से आगे कोई वैल्यू बन रही है, क्लास इंटरवल बन रहा है तो उसको भी आपने बना लेना है। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे लकीली जब हमने 20 का क्लास इंटरवल लिया तो जो लास्ट क्लास हमारे पास इंटरवल था जिसकी अपर क्लास लिमिट 204 ही हमारे पास आती है, तो यहाँ तक हम इसको वेट का जो कॉलम है इसको हम जनरेट करेंगे।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने अब इनकी एंट्रीज को लिखना है, ठीक है। एंट्रीज कैसे लिखेंगे, वो जो टेबल आपके पास ऊपर गिवन है, जो वैल्यूज गिवन थी, जितनी भी वैल्यूज थी, आपने चेक करना है कि वैल्यूज जो है किस क्लास इंटरवल में हमारे पास आ रही है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हेयर, अब चूंकि मैंने आपसे कहा था कि वैल्यूज को नोट कर लें, 76 है तो 76 फर्स्ट हमारे पास जो इंटरवल उसमें आएगी, ठीक है। एज यू कैन सी हेयर 76, 65 से 84 में ये इंक्लूड है, यहाँ पे आ जाएगी, 82 भी यहीं पे आएगा, 70, 68, ये सब वैल्यूज हम कहाँ से ले रहे हैं, ये तमाम के तमाम वैल्यूज आपने, ये जो ऊपर गिवन वैल्यूज थी हमारे पास, इनको आपने टर्न बाय टर्न सबको लेना। फॉर एग्जांपल 106 है, फिर 107 है, 76 है, ठीक है। इन तमाम वैल्यूज को आपने वन बाय वन उस टेबल के अंदर आपने वैल्यूज को पुट करते जाना है जहां पे ये वैल्यूज लाई करेंगे, जिस क्लास इंटरवल में आएंगे। So after write down all of these values in the form of entries in this table। इस टेबल में वेट का कॉलम हमने बनाया, जिसमें हमारे पास जो था वो क्लास लिमिट्स थी, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट। और अपर और लोअर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट जो पहली स्मॉल वैल्यू होती है इसको लोअर क्लास लिमिट कहते हैं, और ये जो बड़ी वाली वैल्यू इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और ये तमाम एंट्रीज को उस टेबल से, चाहे वो 10 बार एक वैल्यू को रिपीट हो तो उतनी बार आप इसको लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन दिस टेबल यू कैन सी 111 वन टाइम, 111 टू टाइम, जितनी बार भी कोई वैल्यू रिपीट होगी उतनी बार इसको आप लिखते जाएंगे, ठीक है। इस टेबल में आप वो तमाम वैल्यूज को लिखेंगे। द थर्ड थिंग इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन तमाम वैल्यूज को आप काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इन वैल्यूज को अगर आप काउंट करें, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज, हाउ मेनी वैल्यूज यू कैन काउंट इट, इट इज इजीली, ये हमारे पास 9 आएंगे। सो द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट क्लास इंटरवल हमारे पास 9 आ जाएगी। सिमिलरली इन सेकंड वैल्यूज, सेकंड जो आपके पास इंटरवल है उसकी वैल्यूज को काउंट करेंगे, वो 10 आ रही हैं। सिमिलरली दीज वैल्यूज, वो जब हमने इसको काउंट किया वो 17 आएंगी, देन 10, 5, 4 एंड 5, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर इन तमाम वैल्यूज को सम करें तो 60 बनेगा। यूजुअली वी विल राइट दिस फ्रीक्वेंसी एंड वी विल डिनोट इट विद स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से हम इसको लिखते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दीज थिंग। जी स्टूडेंट, यहाँ तक अगर अभी आपको कोई क्वेश्चन है, सो यू प्लीज रेज योर हैंड। इफ nothing you understand and you have some problem during the understanding, please raise your hand, I will give the answer of your question। इस क्वेश्चन से रिलेटेड या इससे पहले जो हमने डेफिनेशंस देखी, अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई बात अगर आपको समझ नहीं आई तो हम इससे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। क्लियर एवरीथिंग जी। दिल पजीर आबिद।